Hello students. CBSE conducted its class 10th board paper today, and in this video I'll be providing you with the answers of that board paper. I'll be providing series WXIYZ 5 and set 3 of the same series. Answers are there on the board. You can go through the answers and check whether you have attempted the questions correctly. Section A consisted of 20 MCQs. I am going to discuss few of those. Question number 1 is very simple. Question number 2. In the given figure, एक फिगर गिवन है, in the given figure, AB is equal to BC is given to be 10, AC is given to be 7. We need to find the length of BP. BP की लेंथ हमने बतानी है. अब देखो ये भी 10 है, ये भी 10 है, means BAC is an isosceles triangle. इसी का यूज कर लेते हैं. अब ये isosceles triangle है और ये सर्कल इस isosceles triangle के अंदर है. तो बाय सिमेट्री ये चीज हमारे को दिख रही है कि जो R है वो AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. इट कैन बी प्रूव्ड आल्सो, बट R जो है AC का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा. अगर R AC का मिड पॉइंट है तो आई कैन फाइंड द लेंथ BP. क्यों? AR की लेंथ मिल गई, AR की लेंथ मिल गई तो AP की लेंथ मिल गई. टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल. फ्रॉम देयर यू कैन गेट द आंसर. आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3. Question number 3 is, water in a river which is 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. Water in a river is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall into the sea in 2 minutes? भाई रिवर में से पानी फ्लो कर रहा है और सी में जा रहा है. हमने क्या फाइंड करना है? 2 मिनट्स में कितना वाटर जो है दैट विल फॉल इनटू द सी. अब डेप्थ दे रखी है, विड्थ दे रखी है और रेट ऑफ फ्लो दे रखा है. मींस वाटर इज फ्लोइंग इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. अगर वाटर क्यूबॉइड की शेप में जा रहा है तो आई कैन फाइंड द वॉल्यूम इन 1 आवर, दैट इज 2 किलोमीटर पर आवर है. तो मीटर में बात करेंगे तो 2000 मीटर. दिस इज द लेंथ ऑफ द वाटर कॉलम दैट विल फॉल इनटू द सी इन 1 आवर. Depth is 3 meter and width is 40 meter. So 2000 into 40 into 3. Length into breadth into height. तो ये वॉल्यूम आ गया इन 1 आवर. हमने कितनी देर का निकालना है? 2 मिनट्स का. तो अगर इसको 1 मिनट में निकालना है तो वी विल डिवाइड इट बाय 60. 1 आवर में 60 मिनट्स, तो 60 से डिवाइड करा. अब ये 1 मिनट का आ गया. वी नीड टू फाइंड ऑफ 2 मिनट्स, सो मल्टीप्लाई इट बाय 2. इसको सिंप्लीफाई करेंगे. We can get the answer, and the answer comes out to be option C, that is 8000 meter cube. आगे चलते हैं. 4, 5, 6, 7. These are very simple questions. You can do it. 8, 9, 10. Question number 11. Question number 11 is, if every term of the statistical data consisting of n terms, कितनी terms हैं? n terms हैं, is decreased by 2. Each term is decreased by 2. Then the mean of the data. भाई अगर किसी भी सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस में किसी भी टर्म्स में हर टर्म को एक फिक्स नंबर से डिक्रीज कर रहे हैं तो व्हाट विल हैपन टू द मीन? द मीन इज आल्सो डिक्रीज्ड बाय द सेम नंबर एंड द आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन ए. और आगे चलते हैं. 12, 13, 14. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. 15, 16, 17, 18. आगे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19, assertion reason. Assertion says the number 5 raised to the power n cannot end with digit 0
where n is a natural number. अब 5 की पावर n, 5 की कोई भी पावर लिख लो, it has to end with 5. It can't end with 0. That means assertion is definitely true. रीजन की बात करते हैं, prime factorization of 5 has only two factors, 1 and 5. अब इसमें ध्यान देने वाली बात है, prime factorization has two factors. Prime factorization of a number has two factors, 1 and 5. Is 1 a prime number? No. It has just, prime factorization has just one factor, that is 5. Means reason is false. And if reason is false, assertion is true. So which option? C option is correct for question number 19. And question number 20 जो है, again assertion reason है, इसके अंदर अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर भी रीजन जो दे रखा है, सेंटर ऑफ अ सर्कल इज द मिड पॉइंट ऑफ ईच chord of the circle. No. If the chord is diameter, then the center will be the midpoint of that chord. Otherwise not. तो ये थे 20 क्वेश्चन सेक्शन A. And now we'll be discussing questions from section B. Section B consisted of 5 questions of 2 marks each. Question number 21 जो है, find the greatest 3-digit number which is divisible by 18, 24 and 36. We need to find the greatest 3-digit number divisible by 18, divisible by 24, divisible by 36. तीनों से डिविजिबल होना चाहिए. अच्छा, कोई भी नंबर 18 से डिविजिबल है तो वो 18 का क्या होगा? मल्टीपल. 24 से भी डिविजिबल है, 24 का भी मल्टीपल. 36 से भी डिविजिबल है, 36 का भी मल्टीपल. इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल, इसका भी मल्टीपल. मीन तीनों का कॉमन मल्टीपल. अब कॉमन मल्टीपल की बात करें तो वी नो वी कैन फाइंड एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो हम निकाल ही सकते हैं. इन तीनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल आप निकालोगे, दैट कम्स आउट टू बी 72. एलसीएम आ गया 72. बट हमें क्या फाइंड करना है? ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर. अब 3-digit नंबर की बात करें तो ग्रेटेस्ट 3-digit नंबर हमें पता है 999. क्या ये नंबर होगा जो इन तीनों से डिविजिबल होगा? चेक करना पड़ेगा. भाई इन तीनों का कॉमन मल्टीपल है 72. नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? 72 इंटू 2. नेक्स्ट 72 इंटू 3. मीन 72 की टेबल में चलेंगे कॉमन मल्टीपल. तो चेक करना है क्या ये 72 की टेबल में आएगा. उसके लिए आप क्या करो, इस नंबर को 72 से डिवाइड कर लो. जैसे ही आप इसको 72 से डिवाइड करते हो, व्हाट यू फाइंड? यू गेट द रिमाइंडर एज 63. फर्दर डिवीजन नहीं होती, मींस ये पूरा डिवाइड नहीं होता है, इतना रिमाइंडर बचता है. अगर ये रिमाइंडर नहीं बचता फिर हम कह देते हैं कि ये नंबर इन तीनों से डिविजिबल है. तो अब ये रिमाइंडर बच रहा है, हम क्या करते हैं, इस रिमाइंडर को इस नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो 999 माइनस 63 गिव्स अस 936. ये एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिसको जब हम 72 से डिवाइड करेंगे पूरा पूरा डिवाइड होगा. सो दिस इज द लार्जेस्ट 3-digit नंबर विच इज डिविजिबल बाय ऑल दीज 3 नंबर्स. Is it okay? Next, question number 22. Question number 22 क्या है? If a cos theta plus b sin theta is equal to m, a sin theta minus b cos theta is equal to n, we have to prove that a square plus b square is equal to m square plus n square. अब हमें तो ये प्रूव करना है, a square plus b square is equal to m square plus n square. अब m दे रखा है हमारे को क्या है, और n भी दे रखा है. तो अगर m दे रखा है तो कैन आई फाइंड m स्क्वायर? डेफिनेटली. भाई जो m की वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर, जो n की वैल्यू दे रखी है उसका भी स्क्वायर. जैसे ही मैं इन दोनों के स्क्वायर्स करता हूं, ओपन करता हूं, तो मेरे पास सिंप्लीफाई करके एक चीज का मैं यूज कर लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1. इस आइडेंटिटी का जैसे ही मैं यूज करूंगा, आई एम एबल टू प्रूव दिस थिंग. आगे चलते हैं. इसका जो और पार्ट है, इट्स वेरी सिंपल, यू कैन डू इट. क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 जो है, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 5, -6 एंड -1, -4. y एक्सिस इस लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड करेगी? किस लाइन सेगमेंट को? ज्वाइनिंग द पॉइंट्स
5 -6 and -1 -4। वाई एक्सिस इसको किस रेशियो में डिवाइड करें? सपोज दिस इज द वाई एक्सिस। अब ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? लेट द रेशियो इज k/1। बट वाई एक्सिस इज अ वेरी नाइस लाइन। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इट विल बी ऑफ द फॉर्म 0, y। अब मेरे को तो ये रेशियो फाइंड करनी है। रेशियो मैं फाइंड कर सकता हूं यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। एक्स कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, तो 0 इज इक्वल टू सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ k एंड द आंसर कम्स आउट टू बी 5/1। आगे चले 24th क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है, यू कैन डू इट। 25th के अंदर क्या है? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a एंड b इज डिवाइडेड बाय p सच दैट AP/AB दे रखा है। 25th का a पार्ट जो है A पॉइंट, B पॉइंट, इस लाइन सेगमेंट पे एक P पॉइंट है सच दैट AP/AB is 2/5। मीन्स इफ दिस इज 2, दिस होल इज 5, तो दिस विल बी 3। तो यहां पे है 2/3। तो मैं P के कोऑर्डिनेट्स लिख लूंगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है? बस P के कोऑर्डिनेट्स ही लिखने पे। इसका और पार्ट x, y, P पॉइंट है, x, y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। प्रूव दैट x इज इक्वल टू y। जैसे ही आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो, अप्लाई करते हो, यू आर एबल टू सॉल्व इट। नाउ पासिंग ऑन टू सेक्शन C। सेक्शन C, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें 6 क्वेश्चंस हैं ऑफ 3 मार्क्स ईच। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 26। इसमें चॉइस थी हमारे पास। फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, इन द गिवन फिगर। एक फिगर गिवन है, तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। हाँ जी, इसमें गिवन है CD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर भी है और इसको बाइसेक्ट भी कर रहा है, मींस AD और DB इक्वल। EF इज परपेंडिकुलर टू CD। EF जो है इट इज परपेंडिकुलर टू CD। AE इंटरसेक्ट CD एट G। वी हैव टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? CF over CD is equal to FG over DG। CF over CD, देखें फिगर में, CF over CD किसके इक्वल? FG over DG। मींस राइट हैंड साइड में तो ये दो साइड चाहिए और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? CF और CD। क्या ध्यान में आता है? हम कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी के थ्रू यहां पर पहुंच सकते हैं। भाई CF और CD को इन्वॉल्व करना है, तो मेरे क्या ध्यान में आता है कि CFE और CDB ट्राइंगल को मैं क्या कर सकता हूं? सिमिलर कर सकता हूं। ट्राइंगल CFE इज सिमिलर टू ट्राइंगल CDB। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजीली हो जाएगा। जैसे ये हुआ तो मैं लिख सकता हूं CF बाय CD। CF बाय CD किसके इक्वल आ जाएगी? FE बाय DB। FE बाय DB लिख सकता हूं मैं। अब कहीं ना कहीं इसका तो हमने थोड़ा यूज करा, तीसरी रेशियो भी लिख सकता है। अब अगर आप देखो CF बाय CD को इन्वॉल्व करा, FG बाय DG को इन्वॉल्व करें। FG और DG को इन्वॉल्व करना है, तो ध्यान में आता है कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल इन्वॉल्व होने चाहिए। FG और DG इन्वॉल्व हो जाएगी। क्या ये दोनों ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं? डेफिनेटली। भाई 90 का एंगल दिख रहा है, वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है, ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगेन FGE ट्राइंगल FGE इज सिमिलर टू ट्राइंगल DGA। तो यहां से भी मैं रेशियो लिख सकता हूं। FG बाय DG चाहिए थी, तो FG बाय DG इज इक्वल टू
अगर आप ध्यान दो, जो आपने प्रूव करना था, यहां पर आप लेकर के गए थे FE बाय DB, तो FE को इन्वॉल्व कर लेते हैं। FE यहां पर है, तो FE के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आएगा, DA। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, आपको इन दोनों को इक्वल करना है, मींस ये इक्वल होने चाहिए। अब ये इक्वल होने चाहिए, तो FE तो कॉमन ही आ गया, तो DB और DA इक्वल आएंगे तो प्रॉब्लम इज ओवर। अब DB और DA इक्वल हैं, डेफिनेटली हैं। क्यों? CD क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। जैसे ही आपने वो वैल्यू यहां प्लेस करी, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो गई, तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो गई, एंड वी आर एबल टू प्रूव इट। आगे चलते हैं। इसका जो बी पार्ट है, इन द गिवन फिगर, अगेन फिगर गिवन है इसका, ABCD is a parallelogram. BE bisects CD at M and intersects AC at L. Bisect CD at M means M जो है CD का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये पार्ट इसके इक्वल हो गया। We have to prove EL is equal to 2BL. EL is equal to 2BL. ये प्रूव करना है। मीन्स हमारे को रेशियो चाहिए किसमें, EL और BL में। EL और BL में रेशियो चाहिए। तो ध्यान में आता है कि EL और BL में रेशियो चाहिए, तो ऐसे ट्राइंगल सिमिलर होने चाहिए जिससे ये रेशियो मिल जाए। अब EL और BL, EL देखते ही ध्यान में आता है भाई ELA ट्राइंगल हो जाए, और BL को देख करके ध्यान में आता है कि भाई CLB ट्राइंगल हो जाए। अगर किसी ढंग से ये दो ट्राइंगल, ये बड़ा और ये छोटा ट्राइंगल सिमिलर हो जाए, प्रॉब्लम इज ओवर। अब क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं? बिल्कुल डेफिनेटली ये दो ट्राइंगल सिमिलर है, बट वहां से रेशियो नंबर्स में कैसे आए? तो आपको गिवन पर दोबारा से जाना पड़ेगा। गिवन था M मिड पॉइंट है, इसका जब तक हम यूज नहीं करेंगे आगे नहीं बढ़ेगा क्वेश्चन। अब इसका यूज कैसे करें? DM और CM बराबर है। अगर DM और CM बराबर है, आपको इधर रेशियो चाहिए 2:1। अगर इधर 2:1 आ जाए तो प्रॉब्लम इज ओवर, प्रॉब्लम इज ओवर ना। तो यहां पर 2:1, अब ये पार्ट इसके तो इक्वल है ही है, मींस DE और BC भी अगर इक्वल हो गए तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब DE और BC को इक्वल करने के लिए हम DM और MC इक्वल हैं, इसका सहारा ले लेते हैं। क्या करते हैं, ये दो छोटे ट्राइंगल्स, कौन से, DEM और CBM, ये दोनों ट्राइंगल डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। भाई ये पार्ट इसके इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे ही ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो DE BC के इक्वल आ गया। अब DE BC के इक्वल आ गया, BC फर्दर AD के इक्वल था। नाउ द क्वेश्चन इज ओवर। क्यों? AE और BC में रेशियो मिल गई 2:1। अगर यहां 2:1 है तो EL और BL में भी रेशियो क्या मिल गई, 2:1। तो वहां से ये चीज हम प्रूव कर लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? इट सेज अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. It becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Find the fraction. हमें क्या फाइंड करना है? फ्रैक्शन फाइंड करनी है। अब फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो लेट द फ्रैक्शन इज x/y। न्यूमरेटर को x ले लिया, डिनोमिनेटर को y ले लिया। What they say? It becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator. न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें तो न्यूमरेटर हो गया x-1, डिनोमिनेटर इज y, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 and it becomes 1/4, fraction becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. डिनोमिनेटर में अगर हम 8 ऐड कर देते हैं तो डिनोमिनेटर हो गया y + 8, न्यूमरेटर रिमेन्स द सेम।
अब ये रिलेशन आ गया, वी नीड टू फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन फाइंड करनी है मीन्स वी नीड टू फाइंड एक्स, वी नीड टू फाइंड वाई, और एक्स और वाई मिल जाएगा। हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई एक्स और वाई में, इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इन ऑर्डर टू फाइंड द फ्रैक्शन, एंड द फ्रैक्शन कम्स आउट टू बी 5/12। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 28, प्रूव दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है tan a over 1 plus secant a minus tan a over 1 minus secant a is equal to 2 cosecant a। लेफ्ट हैंड साइड में टेंजेंट और सीकेंट है, राइट हैंड साइड में कोसिकेंट है। मतलब कहीं ना कहीं टेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, इन सब में अगर कॉमन रिलेशन कहीं मिलेगा तो वो साइन कॉस के थ्रू मिल सकता है। भाई सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में यू कैन टेक टेंजेंट ए कॉमन, जैसे ही आपने टेंजेंट ए कॉमन लिया उसके आप सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, साइन कॉस में चेंज करा, यू आर एबल टू प्रूव दिस थिंग, बड़े इजीली हो जाएगा। 29 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड्स टू फाइंड द मीन। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 30 में, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। अगेन वेरी सिंपल, इसके साथ चॉइस में जो क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 का बी पार्ट, the traffic lights at 3 different road crossings change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds। ट्रैफिक लाइट्स चेंज होती हैं 48 सेकेंड, 72 सेकेंड्स एंड 108 सेकेंड। अब 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स पे है, ट्रैफिक लाइट चेंज हो गई, 48 सेकंड्स के बाद चेंज होती है। अगर फर्स्ट टाइम 48 सेकंड्स पे हुई तो नेक्स्ट टाइम कब होगी? आफ्टर 96 सेकंड्स, फिर 144 सेकंड्स एंड सो ऑन। ऐसी ये वाली लाइट 72 सेकंड्स पे चेंज होती है तो 72 के बाद चेंज हुई, देन आफ्टर 144 सेकंड, देन आफ्टर 216 सेकंड एंड सो ऑन। इसी टाइप से इसकी बात करेंगे, दिस चेंजेस एवरी 108 सेकंड, तो 108, देन 216, then 324 seconds and so on। अगर आप ध्यान दो, जब ये चेंज हो रही है ट्रैफिक लाइट्स तो ये मल्टीपल में चेंज हो रही है, 48 सेकंड पे, फिर 96 सेकंड पे, फिर 144, यहां 48 के मल्टीपल्स हैं, यहां 72 के हैं और यहां 108 के मल्टीपल्स हैं। इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM, 7 AM पे तीनों लाइट्स एक साथ चेंज हुई, एट व्हाट टाइम विल दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट? चेंज टुगेदर मीन्स दोबारा एक साथ कब चेंज होंगे? अब वो एक ऐसा टाइम होगा जिसपे ये लाइट भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, ये भी चेंज हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो एक ऐसा टाइम पीरियड होगा जो इसके मल्टीपल्स में भी आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तीनों के मल्टीपल्स में आएगा, मीन्स तीनों का कॉमन मल्टीपल। और सबसे पहले वो चीज कब होगी? तो वी कैन फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स। एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स कम्स आउट टू बी 432। 432 सेकंड के बाद ऐसा टाइम आएगा जब तीनों लाइट्स एक साथ चेंज होंगी। अब 432 सेकंड्स, तो टाइम हमने बताना है, वी कांट से 7 AM 432 सेकंड, भाई 60 सेकंड्स के बाद 1 मिनट हो जाता है, तो हम 432 सेकंड्स को मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं बाय डिवाइडिंग इट बाय 60, तो वी गेट 7 minutes 12 seconds, 7 minutes 12 seconds। तो 7 AM के बाद 7 minutes 12 seconds और करें तो वी गेट द टाइम एज 7, 7, 12, 7:07 क्लियर? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज 8 मीन्स A is 8, लास्ट टर्म इज 65, L is 65, sum of all terms Sn is 730, we need to find the common difference means D। हमें D फाइंड करना है। देखो काफी कुछ गिवन है, D फाइंड करना है। A और L का यूज ध्यान में आता है, भाई Sn भी दे रखा है, A और L की L से Sn आता है, बिल्कुल आता है। Sn को मैं लिख सकता हूं n/2 इंटू A प्लस L, तो 8 प्लस 65 इज इक्वल टू 730। यहां से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ n। Once n is there और L is there, n भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, तो A प्लस n-1 इंटू D। A पता है,
n पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो वहां से आपके पास d की वैल्यू आ जाएगी एंड d कम्स आउट टू बी 3। आगे बढ़ते हैं सेक्शन डी। सेक्शन डी में हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे, 5 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चन, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 32 ए पार्ट। इसमें चॉइस थी, ए पार्ट जो है इसका, अ ट्रेन ट्रेवल्स at a certain average speed for a distance of 54 kilometers and then travels a distance of 63 kilometers at an average speed of 6 kilometers per hour more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the journey, what was its first average speed? We need to find the speed. Let the speed of the train is x kilometers per hour. So 32 A option. Let the speed of the train is x kilometer per hour. अब स्पीड की बात होगी, स्पीड हमने फाइंड करनी है। क्या दे रखा है? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और टाइम की बात कर रहे हैं। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम में रिलेशन। अब टाइम हम फाइंड कर सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस दे रखा है 54 किलोमीटर पहले कवर करा एट दिस स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड गिव्स मी द टाइम एंड देन travels a distance of 63 kilometers at a speed 6 kilometer more than the first speed. First speed थी x, तो अब स्पीड है x plus 6. It takes 3 hours to complete the journey. पूरी जर्नी में कितने टाइम लगे? 3 hours लगे. This time plus this time is equal to 3. हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब x में एक ही इक्वेशन है, इसको सिंप्लीफाई करोगे। सबसे पहले अगर आप देखो तो कुछ कॉमन मिल रहा है, डेफिनेटली आई कैन टेक 9 कॉमन, ये बच गया 6/x प्लस 9 कॉमन ले लिया तो 7/x प्लस 6 इज इक्वल टू 3। क्लियर? 3 की साइड चेंज कर दो तो यहां पे रह गया 1, यहां पे आ गया 3। अब एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 7 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 6, उसकी भी साइड चेंज कर दी, इंटू 1 करा तो x इंटू एक्स प्लस 6। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू गेट अ क्वाड्रेटिक इन x। क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर सकते हैं भाई मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, और अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना मिले तो वी कैन यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आंसर कम्स आउट टू बी 36 किलोमीटर पर आवर। जो फर्स्ट स्पीड है, एवरेज स्पीड है ट्रेन की, दैट कम्स आउट टू बी 36 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं, इसी का जो और पार्ट है, 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 15/8 hours। इसी का बी पार्ट, 2 पाइप्स कैन फिल द टैंक इन 15/8 hours। Pipe with larger diameter takes 2 hours less than the pipe with smaller diameter to fill the tank separately. Find the time in which each pipe can fill the tank separately. अब 2 अलग अलग पाइप्स हैं, एक पाइप विद लार्जर डायमीटर, एक पाइप विद स्मॉलर डायमीटर। इसको कुछ टाइम लगता है, इसको कुछ टाइम लगता है, बट एक रिलेशन दिया है। लार्जर डायमीटर वाला जो पाइप है, इट टेक्स 2 hours लेस देन द टाइम टेकन बाय द पाइप विद स्मॉलर डायमीटर। अगर इट टेक्स x hours, तो दिस पाइप विल टेक x minus 2 hours, 2 hours लेस। क्लियर? ये दे रखा है हमारे को, टुगेदर दे फिल अ टैंक इन 15/8 hours। अब इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, वर्क एंड टाइम, तो पर यूनिट पे जाना इजी रहता है। पर यूनिट पे जाना इजी रहता है मींस भाई x minus 2 hours में पूरा टैंक फिल करता है, तो 1 hour में कितना करेगा? 1/x minus 2 पार्ट ऑफ द टैंक। x hours में पूरा टैंक फिल करता है ये वाला पाइप, तो 1 hour में कितना करेगा? 1/x। टुगेदर दोनों पाइप अगर मिलकर के करें तो इतना पोर्शन फिल करेंगे। अब उन्होंने क्या बोला है? 2 pipes together fill a tank in 15/8 hours। 15/8 hours में टैंक फिल होता है, तो 1 hour में कितना होगा? 8/15। तो 8/15 of the portion is filled in 1 hour by both the pipes taken together. Again, यहां पे x में एक इक्वेशन बन गई,
इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, यू गेट अ क्वाड्रेटिक इन एक्स, जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और वहां से वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। टाइम आता है स्मॉलर डायमीटर वाला 5 आवर्स और लार्जर डायमीटर वाला 3 आवर्स। क्लियर? मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 35 जो है 33, इट इज वेरी सिंपल, कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 मैं डिस्कस कर लेता हूं, वैसे इसके पैरेलल क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी है। क्वेश्चन नंबर 34, ए पार्ट, अ ट्राइंगल एबीसी is drawn to circumscribe a circle of radius 4 such that the segments BD and DC are of length 10 centimeter and 8 centimeter respectively. We have to find the lengths of AB and AC if it is given that area of the triangle is 90 centimeter square. Figure given है 34A part. A, B, C, D, this is O, this is given to be 4, this is 10, this is 8. 10 centimeter, 8 centimeter, this is 4 centimeter. Area of the triangle is given and we need to find AB and AC. AB और AC फाइंड करना है, तो ध्यान में आता है AB और AC फाइंड करना है, इस फिगर को देख करके ध्यान में आ रहा है भाई ये 10 दे रखा है, कुछ मुझे पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? ये वाला पार्ट पता लग जाएगा भाई, बी पॉइंट से BD, और अगर इसको मैंने रख दिया E, तो BD और BE क्या होंगे? बराबर, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये 10 है तो ये भी 10। इसी टाइप से CD, और अगर इस पॉइंट को रख दिया F, तो CF, ये दोनों भी क्या होंगे? इक्वल। इफ दिस इज 8, दिस विल आल्सो बी 8। अब मेरे को तो AB और AC बताने थे, ये पार्ट तो पता लग गया, मींस किसी ढंग से AE और AF पता लगने चाहिए। बट AE और AF की अगर मैं बात करूं, तो A पॉइंट से AE एंड AF भी क्या है? टेंजेंट्स, दोनों की लेंथ इक्वल है। लेट दिस बी x, दिस विल आल्सो बी x की वैल्यू मिल जाए तो प्रॉब्लम इज ओवर। वैल्यू तो तब मिलेगी जब हम x में क्या फॉर्म करेंगे? एक इक्वेशन के लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है, इस ट्राइंगल का एरिया दे रखा है, ट्राइंगल का एरिया मैं फाइंड कर सकता हूं। ठीक है? कैसे? देखो ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? दिस इज 90 डिग्री। इसका यूज कर लेते हैं। तो O पॉइंट को अगर मैं B से ज्वाइन कर दूं और O पॉइंट को C से ज्वाइन कर दूं, तो OBC ट्राइंगल का एरिया मेरे पास आ जाएगा हाफ इंटू बेस, दैट इज 18, इंटू हाइट, दैट इज 4। इस ट्राइंगल का एरिया आ गया। इसी टाइप से O को C से ज्वाइन करना है, अगर मैं O को A से ज्वाइन कर लूं और O पॉइंट को F से ज्वाइन करूं, तो ये रेडियस हो गया, ये टेंजेंट हो गया, तो यहां पर भी एंगल क्या है? 90 डिग्री का। तो इसका यूज करके मैं OCA ट्राइंगल का एरिया भी लिख सकता हूं। इसको बेस मान लिया, इसको हाइट मान ली, तो हाफ इंटू 8 प्लस एक्स इंटू 4। और ऐसे ही इधर अगर हम बात करें OAB ट्राइंगल में, AB टेंजेंट है, O को अगर मैंने E से ज्वाइन करा तो ये रेडियस हो गया, ये एंगल भी क्या हो गया? 90। तो इस ट्राइंगल का एरिया भी मैं लिख सकता हूं हाफ इंटू 10 प्लस एक्स बेस इंटू हाइट, दैट इज 4। और अगर मैं इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तीनों को ऐड करके इक्वल टू करा आपने 90, तो यू गेट एन इक्वेशन इन एक्स में जैसी इक्वेशन आई आप उसको सॉल्व कर सकते हो। उसको सॉल्व करके यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाती है 9/2। x 9/2 आ गया, तो यू कैन फाइंड AB, यू कैन फाइंड AC। क्लियर? एक साइड आ जाएगी 29/2 और दूसरी साइड आ जाएगी आपके पास 25/2। क्लियर? इसी का सेकेंड पार्ट चॉइस है। सेकेंड पार्ट जो है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। टू सर्कल्स with centers O and O dash of radii 6 and 8, फिगर गिवन है।
एक का रेडियस 6, एक का रेडियस 8, एक का सेंटर O, एक का O डैश, इसका रेडियस है 6 और इसका रेडियस है 8, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स P and Q such that OP and O dash P are tangents to the two circles. OP की अगर हम बात करें तो OP इस सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है. O dash P इस सर्कल के लिए क्या है? टेंजेंट है. ये दे रखा है हमारे को, ये टेंजेंट है. फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड PQ. जो ये कॉमन कॉर्ड है, दोनों सर्कल्स की कॉर्ड है PQ, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी. एक का रेडियस 6, एक का रेडियस 8, ये टेंजेंट्स हैं. PQ की लेंथ हमने फाइंड करनी है. अब सेंटर्स गिवन है, टेंजेंट्स गिवन है, तो ध्यान में आता है कि भाई आप टेंजेंट्स के रिजल्ट्स का यूज करो. एक रिजल्ट, ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो व्हाट कैन यू से अबाउट दिस एंगल? 90. इसी टाइप से ये रेडियस, ये टेंजेंट, तो ये एंगल 90, जिधर से मर्जी कर लो. अब ये 6 है, ये 8 है, ये एंगल 90 है. अगर मैं O को O डैश से ज्वाइन करूं तो डेफिनेटली आई कैन फाइंड द लेंथ O डैश. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स मेरे को पता लग जाएगा. ये 6, ये 8, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये टोटल डिस्टेंस आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया. बट कोई कहेगा मेरे को तो लेंथ PQ फाइंड करनी है. बिल्कुल ठीक बात है, लेंथ PQ फाइंड करनी है. ये कॉमन कॉर्ड है ना, तो लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स और कॉमन कॉर्ड, हम ये प्रूव कर सकते हैं बड़े इजीली कि यहां पर जो एंगल बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? 90 डिग्री का बनेगा. इट कैन बी प्रूव्ड इजीली, आप सब कर सकते हैं. जैसे ही हमने ये 90 का एंगल प्रूव करा, तो इस वाले सर्कल में अगर मैं बात करूं, PQ कॉर्ड है, ये सेंटर है, और सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. मींस ये पॉइंट PQ का क्या आ गया? मिड पॉइंट आ गया. तो अगर मेरे को ये लेंथ मिल गई तो डेफिनेटली आई कैन फाइंड द लेंथ PQ. PQ की लेंथ मिल जाएगी. अब ये लेंथ कैसे फाइंड करें? देखो ये 10 है, ये फाइंड करना है. ये बेस, ये हाइट. बेस और हाइट का यूज कहां पर होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल में. एरिया ऑफ ट्राइंगल आप निकाल सकते हो हाफ इंटू 10 इंटू से दिस पार्ट इज x, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्या इस ट्राइंगल का एरिया और भी कहीं से आ रहा है? भाई यहां पर भी तो 90 का एंगल है. अगर मैं इसको बेस ले लूं, इसको हाइट ले लूं, तो भी तो एरिया आ जाएगा. दैट इज हाफ इंटू 6 इंटू 8. इसको अगर मैं सॉल्व करूं, आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ x. जैसे ही x की वैल्यू आई, उसको डबल करा, तो आई कैन गेट द लेंथ PQ, और PQ की लेंथ आ जाती है 9.6 सेंटीमीटर. क्लियर? आगे चलते हैं. इसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 35. Two pillars are standing on either side of a 80-meter wide road. Height of one pillar is 20 meter more than height of the other pillar. From a point on the road between the pillars, the angle of elevation of the higher pillar is 60 degree, whereas that of the other pillar is 30 degree. Find the position of the point between the pillars and the height of each pillar. Use √3 is equal to 1.73. यह है. देखो, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के क्वेश्चन बड़े इजीली सॉल्व हो जाते हैं अगर हम उसकी फिगर ढंग से बना लें. तो इसमें हम रीड करें, तो टू पिलर्स आर स्टैंडिंग ऑन ईदर साइड ऑफ अ 80-meter वाइड रोड. सपोज ये रोड है जिसकी विड्थ है 80 मीटर. वी हैव टू पिलर्स ऑन ईदर साइड. एक पिलर इधर, दूसरा पिलर इधर. अब क्या दे रखा है? वन पिलर इज 20 मीटर मोर देन द अदर पिलर. इफ दिस इज x, दिस पिलर इज x प्लस 20. Between the pillars there is a point, say here, what they say, the angle of elevation of the higher pillar is 60 degree. जो higher pillar है इसके टॉप का angle of elevation, this is 60 degree, and the angle of elevation of the other pillar is 30 degree. इधर जो देखें तो this is 30 degree. ये दे रखा है हमारे को.
वी हैव टू फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पिलर्स, मींस इस पॉइंट की पोजीशन डिसाइड करनी है। ये टोटल 80 है, मींस वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड दिस डिस्टेंस। और क्या फाइंड करना है? वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर। दोनों पिलर्स की हाइट फाइंड करनी है। ये x है, ये x प्लस 20 है, मींस वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x आया तो ये भी आ गया, ये भी आ गया। √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, एक रिलेशन यहां पे मिल जाएगा, ये 30 डिग्री है, दिस इज x, तो आई कैन फाइंड दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ x, दैट कम्स आउट टू बी x √3। टेंजेंट 30 का यूज करेंगे, वहां से हो जाएगा। दिस इज x प्लस 20, ये 60 डिग्री है। अगर मैं tan 60 का यूज करूं तो यहां से ये वाला डिस्टेंस मेरे पास आ जाएगा यूजिंग टेंजेंट 60 डिग्री, दैट कम्स आउट टू बी x प्लस 20 बाय √3। अब इन दोनों का सम तो 80 है। जैसे ही मैंने सॉल्व करा था मेरे पास x की वैल्यू आ गई। वंस x की वैल्यू आ गई तो ये हाइट आ गई, ये हाइट भी आ गई। x √3 ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है। यूजिंग दिस आई कैन राइट द आंसर्स टू दिस क्वेश्चन जो हमने प्रोवाइड करे आपको। And finally, passing on to the last part of the paper, that is section E, which consisted of 3 case study based questions. Starting with case study 1, that is question number 36. In a pool at an aquarium, a dolphin jumps out of the water, traveling at 20 centimeters per second. Its height above water level after t seconds is given by h is equal to 20t minus 16t square. तो यहां पर हमारे को हाइट जो डिटरमिन कर रखी है, दैट इज 20t minus 16t square. This is the function in t. Based on the above, एक फिगर दी हुई है, you have to give the answers. First part is find the zeros of the polynomial p of t equal to 20t minus 16t square. इस polynomial की zeros बतानी है। Polynomial के zeros हम बता सकते हैं बड़े easily. Either we can use the factorization method और by observation दिख जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। अब यहां पर अगर आप देखो तो zeros बताने के लिए, इस polynomial की zeros बतानी है, I can take something common. क्या भाई, एक 4 कॉमन आ जाएगा 20 और 16 में से, और t और t स्क्वायर में से t कॉमन आ जाएगा। क्या बचा इधर? 5 माइनस 16t स्क्वायर में से 4t आ गया, तो 4t यहां पर है। अब ये फैक्टर्स बन गए। कैन आई टेल द जीरोस? डेफिनेटली, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। दिस इज 0 मींस t इज इक्वल टू 0 और दिस इज 0 मींस t इज इक्वल टू, बोलो, 5/4। Means 0 and 5/4 are the zeros of the given polynomial. First part. Second part, which of the following types of graph represents p of t? p of t means this polynomial. इनमें से कौन सा ग्राफ इस polynomial को रिप्रेजेंट करेगा? देखो, zeros हैं 0 and 5/4, तो zeros से हम ग्राफ बता सकते हैं, पता लगता है कैसे? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ग्राफिकली कैसे आती है? x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। अब अगर आप देखो 0 और 5/4 जीरोस हैं, तो कौन सा ग्राफ 0 और 5/4 पे कट कर रहा है? भाई, एक तो ए ऑप्शन, बी वाला तो नहीं है, सी ऑप्शन भी है 0 और 5/4 पे, और डी वाला भी नहीं है। इसका मतलब है ए और सी में से कोई आंसर होना चाहिए। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड से, एक पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड से। इसका फैसला कैसे करें? वी कैन डिसाइड दिस बाय यूजिंग साइन ऑफ द लीडिंग कोफिशिएंट। लीडिंग कोफिशिएंट का साइन देख सकते हैं। अगर लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव है तो पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। अब यहां पर अगर हम देखें तो लीडिंग कोफिशिएंट मींस कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या है? -16। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो लीडिंग कोफिशिएंट आ गया -16, नेगेटिव है, तो इट विल बी अ पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड्स, मींस ए ऑप्शन। आगे चलें। इसका जो थर्ड पार्ट है उसमें चॉइस है ए पार्ट, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ h एट t इज इक्वल टू 3/2। t इज इक्वल टू 3/2 पे h की वैल्यू,
तो इसमें t की जगह 3/2 पुट कर दो, h की वैल्यू आ जाएगी। h कम्स आउट टू बी -6। h क्या डिटरमाइन कर रहा था? हाइट। हाइट आ गई नेगेटिव। व्हाट इट मीन्स? भाई डॉल्फिन ने जब जंप लिया, ऊपर जाकर के जब वो नीचे आई, तो वाटर सरफेस पे जाकर के क्या रुक जाएगी? इट विल गो इनसाइड द वाटर डीप। तो हाइट इज नेगेटिव मीन्स डॉल्फिन इज एट 6 यूनिट्स इनसाइड द वाटर या 6 यूनिट्स डीप। हाइट और डेप्थ, पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस। क्लियर? इसी के बी पार्ट, हाउ मच डिस्टेंस हैज द डॉल्फिन कवर्ड बिफोर हिटिंग द वाटर लेवल अगेन। अगर आप फिगर देखो तो पैराबोला से ही क्लियर हो रहा है। भाई पहले ओरिजिन पे है, वहां से जंप लेकर के 5/4 पर वहां पहुंच गई, तो 0 से लेके 5/4 तक वो 2 जीरो हैं, तो वहां से हम वो डिस्टेंस बता सकते हैं, इट इज 5/4 यूनिट्स। आगे चलते हैं, केस स्टडी 2। अ गोल्फ बॉल इज स्फेरिकल with about 300 to 500 dimples that help increase its velocity while in play. Golf balls are traditionally white but available in colors also. Traditionally white होती हैं, but they are available in different colors also. In the given figure, a golf ball has a diameter 4.2 centimeter and the surface has 315 dimples. डिंपल्स के बारे में बताया, दे आर हेमिस्फेरिकल ऑफ रेडियस 2 mm, 2 मिलीमीटर। गोल्फ बॉल की एक पिक्चर दे रखी है, साथ में बना रखा है, बताया हुआ है फिगर में। बेस्ड ऑन द अबव यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। अब अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो, इट इज समवट लाइक दिस। ये ऐसे है गोल्फ बॉल, ठीक है, ये इसका पूरा सरफेस है, ऐसे पूरे सरफेस पे कितने डिंपल्स हैं? 315 डिंपल्स आर देयर। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन सच डिंपल। वन सच डिंपल, अगर मैं डिंपल की बात करूं तो डिंपल कैसा है? ये हेमिस्फेरिकल है। अगर हेमिस्फेरिकल डिंपल है तो हेमिस्फीयर तो ऐसा होता है ना, ये सरफेस आ रही है, ये डिप्रेशन है ना, डिंपल तो ये चीज है। अब आपने इसका सरफेस एरिया बताना। सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? मींस वी नीड टू फाइंड दिस सरफेस। विच सरफेस? द कर्व्ड सरफेस। और रेडियस दे रखा है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर दे रखा है, तो इट इज 2πr²। तो एक का हम फाइंड कर सकते हैं, दैट कम्स आउट टू बी 2 × 22/7 × 2 mm। 2 mm is the radius, so 2 × 2, तो ये बन गया 22 × 8/7, that is 176/7 millimeter square. This is the surface area of one dimple. आगे डेसिमल्स में करना हो कर सकते हैं, वैसे आई थिंक इतना लिखना सफिशिएंट है। आगे चलें, इसी का सेकेंड पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल डग आउट टू मेक वन डिंपल। एक डिंपल के लिए मटेरियल डग आउट, भाई कितना मटेरियल हमने इसमें से निकाला? ये वाला मटेरियल निकाला, मींस वी नीड टू फाइंड दिस वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, कितना मटेरियल हैज बीन डग आउट। तो वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, रेडियस पता है, यू कैन इजीली फाइंड द वॉल्यूम, दैट कम्स आउट टू बी 352/21 मिलीमीटर क्यूब। और इसी का थर्ड पार्ट, उसमें चॉइस है, वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एक्सपोज टू द सराउंडिंग। थर्ड पार्ट में वी नीड टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया दैट इज एक्सपोज टू द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग का मतलब बॉल का जो बाहर वाला एरिया है जो भी एक्सपोज है, कौन कौन सा एरिया होगा? ये वाला एरिया होगा सारा, ये वाला, और ये वाला एरिया भी एक्सपोज्ड है। तो वी नीड टू फाइंड दिस एरिया एंड वी नीड टू फाइंड दिस एरिया, सारा एरिया एक्सपोज्ड है। अब ये निकालेंगे कैसे? भाई अगर तो ये पूरा एक जैसा होता तो स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया हम निकाल लेते, बट वो पूरा तो है नहीं, क्योंकि जहां पर डिंपल है वहां पे ये जगह तो खाली है, मींस ये पोर्शन तो खाली है, ये वाला है बट ये पोर्शन खाली है। तो पर डिंपल आपको ये चीज तो क्या करनी पड़ेगी? सब्ट्रैक्ट, और इसको क्या करना पड़ेगा? कर्व सरफेस को ऐड।
टोटल का आप निकाल सकते हो, उसकी डायमेंशन दे रखी है हमारे को, डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बॉल हम फाइंड कर सकते हैं, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब दूसरी डायमेंशन मिलीमीटर में है, या तो सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में सॉल्व करें या सारा क्वेश्चन मिलीमीटर में सॉल्व करें। हम मिलीमीटर में सॉल्व कर लेते हैं। तो 4.2 सेंटीमीटर, दैट इज 2.1 सेंटीमीटर। 4.2 इज डायमीटर, रेडियस इज 2.1, मिलीमीटर में करेंगे तो इट इज 21। तो 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा एरिया, अगर ये पूरी सॉलिड होती तो इतना एरिया था दैट वाज एक्सपोज टू द सराउंडिंग। अब ऐसा नहीं है, अब ये वाला एरिया आपको माइनस करना है। 315 डिंपल्स हैं, एक डिंपल के लिए क्या माइनस होगा, दिस पोर्शन दैट इज पाई आर स्क्वायर। तो 315 डिंपल्स के लिए 315 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर इज 2 mm, तो 2 इंटू 2, ये तो माइनस हो गया, बट कुछ ऐड भी होना है, जो न्यू एरिया आ गया, जो ये डिंपल्स हैं उसकी जो कर्व सरफेस है दैट इज टू बी एडेड, तो वो ऐड हो जाएगी। 315 इंटू एक के लिए 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी कैन गेट द आंसर। आंसर कम्स आउट टू बी 9504 मिलीमीटर स्क्वायर। और इसमें चॉइस थी, अगर ये नहीं करना तो इसका और पार्ट था, बी पार्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल का वॉल्यूम। अब अगर ये पूरा सॉलिड होता तो वॉल्यूम हम निकाल सकते थे, 4/3 पाई आर क्यूब, 21 21 21 वॉल्यूम आ गया था। बट अब पूरा वॉल्यूम तो है नहीं, ये डिंपल्स तो हैं, निकाल दिए इसमें से, मींस ये वॉल्यूम हमारे को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक डिंपल का वॉल्यूम हमने फाइंड करा था सेकंड पार्ट के अंदर, तो 315 डिंपल्स के जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करा तो वी विल गेट द आंसर, दैट कम्स आउट टू बी 33528, यहां पर लिखा है मिलीमीटर क्यूब। ये थी केस स्टडी नंबर 2। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पेपर, दैट इज केस स्टडी नंबर 3। प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। अ मिडिल स्कूल डिसाइडेड टू रन द फॉलोइंग स्पिनर गेम एज अ फंड-रेजर ऑन क्रिसमस कार्निवल। दो स्पिनर्स की पिक्चर बता रखी है, मेकिंग पर्पल। स्पिन ईच स्पिनर वंस, ब्लू एंड रेड मेक अ पर्पल, सो इफ वन स्पिनर शोज रेड एंड अनदर ब्लू देन यू विन। एक पे रेड आ जाए दूसरे पे ब्लू आ जाए देन यू विन। वन सच आउटकम इज रिटन एज RB, red, blue. Based on the above, answer the following questions. पहला है, list all the possible outcomes of the game. All possible outcomes. भाई फर्स्ट वाले स्पिनर को स्पिन करेंगे तो रेड भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है, येलो भी आ सकता है। इधर विल गेट रेड और विल गेट ग्रीन और विल गेट येलो। सेकंड स्पिनर को करेंगे तो रेड भी आ सकता है, ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन भी आ सकता है। अब रेड के साथ रेड भी आ सकता है, रेड के साथ ब्लू भी आ सकता है, रेड के साथ ग्रीन भी आ सकता है। तो RR, RB, RG, तीन आउटकम्स तो ये होगी। ऐसे अगर इधर ग्रीन आया तो ग्रीन के साथ रेड भी आ सकता है, ग्रीन के साथ ब्लू भी आ सकता है, ग्रीन के साथ ग्रीन भी आ सकता है। तो GR, GB, GG ये भी हो सकता है। और अगर येलो आया तो ऐसे ही 3 केसेस यहां पर। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स को आपको लिस्ट आउट करना है। यू विल राइट लाइक दिस, RR, RB, RG, GR, GB एंड सो, ऐसे हम लिख देंगे। तो 9 आउटकम्स आती हैं। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग पर्पल। मेकिंग पर्पल, इसकी प्रोबेबिलिटी मींस विनिंग। विनिंग कब है? व्हेन यू गेट रेड एंड ब्लू, R एंड B। अब अगर R एंड B देखो तो इन दोनों केसेस में तो कुछ आना ही नहीं। R और B कहां से मिलेगा हमारे को? इसके साथ मिल सकता है R एंड B। ठीक है, तो एक केस है आउट ऑफ 9। तो आंसर इज 1/9। इसी का जो थर्ड पार्ट है जिसमें चॉइस है, ए पार्ट,
फॉर ईच विन अ पार्टिसिपेंट गेट्स ₹10, विन के लिए मिलता है ₹10, बट इफ ही शी लूजेस ही हैज टू पे ₹5 टू द स्कूल। अगर जीतेंगे तो ₹10 मिलेंगे, अगर हारेंगे तो दे हैव टू पे ₹5 टू द स्कूल। अब क्या बोला है, इफ 99 पार्टिसिपेंट्स प्लेड, कितनों ने खेला, 99 ने खेला, कैलकुलेट हाउ मच फंड कुड द स्कूल हैव कलेक्टेड, स्कूल कितना फंड रेज कर सकता था। 99 ने खेला है तो प्रोबेबिलिटी सेज, विनिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, 1/9, तो 99 में से 1/9 विन है, तो 99 का 1/9 निकाला तो 11 विनर्स हैं। 99 में से 11 विनर्स हैं, तो लूजर्स कितने हैं, 88, रिमेनिंग 88 आर द लूजर्स। इनको तो मिल गए ₹10 ईच, तो कितने मिल गए टोटल विनर्स को, ₹110। और ये जो 88 लूजर्स हैं, ईच विल पे ₹5 टू द स्कूल, तो ₹5 ईच, तो दे पे 440 टू द स्कूल। 440 स्कूल को मिला, 110 विनर्स को उन्होंने पे कर दिया, तो हाउ मच दे रेज, ₹330 दे रेज। इसका और पार्ट, if the same amount of ₹5 has been decided for winning or losing, winning और losing अगर हर एक के लिए सेम अमाउंट होती, भाई ₹5 विन के हैं, ₹5 लॉस के, तो विनर्स तो थे 11, उनको कितना मिलता, ₹5 के हिसाब से 55, और 88 थे लूजर्स, वो कितना पे करते हैं स्कूल को, 88 इंटू 5, 440, तो 55 विनर्स को मिलता, 440 स्कूल को मिलता, तो इन ऑल स्कूल को नेट कितना आता, 440 माइनस 55, दैट इज ₹385, दैट इज द अमाउंट द स्कूल वुड हैव कलेक्टेड। एंड विद दिस आई हैव कंप्लीटेड द डिस्कशन ऑफ दिस पेपर, द बोर्ड पेपर कंडक्टेड टुडे। आपको पता भी लग गया होगा आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करा है। I hope all of you have enjoyed this video. Do not forget to subscribe to our YouTube channel RN Classes Private Limited. Also, like this video and do share the video with your friends.